बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके नाम से आगाज़ के जिसके नामों में से एक नाम रहमान, के जिसके नामों में से एक नाम रहीम, के जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो अजीज़ान, आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड ग्रामर स्कूल, आई एम कॉल्ड सुल्तान महमूद। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमने इंग्लिश का ये फर्स्ट लेक्चर है आपके साथ हमारा, तो इसमें हम लोगों ने आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के बारे में बताना है। तो ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो हैं ये क्या होते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। So far as the definition is concerned, we may say that the sentences in which we may introduce anybody, anything, any place, the sentences in which we may give the introduction of anybody, any place, anything. So what is subject here? In these kind of sentences, we may say that the thing, the person, the place which is given for introduction is called subject here. And so far as the object is concerned, we may say that the introduction of anything, any place, any person is called object here. The very interesting element here is complementary verb. What is complementary verb? So many students are just thinking concerning complementary verbs, that they think that these are the helping verbs, but here these are not helping verbs. These are called complementary verbs because we put without verbs, so that's why these are called complementary verbs. Now how we can translate, how we can use in these kind of sentences. For examples, my brother is a doctor. Here my brother is a person that is presented for introduction, so that's why this is called subject here, and we use in accordance with the formula. What is complementary verb here is, this is not the helping verb, this is actually the complementary verbs. Now we use complementary verb and we are using article because this is called a noun and we use article before any noun. So doctor is the introduction in this kind of sentence. Doctor is the introduction, so that's why this is called object. Now once again, the very next example is here. Pakistan is my native land. Pakistan is my motherland. Pakistan is my fatherland, and Pakistan is my homeland. So Pakistan we are using here for introduction. We are presenting the introduction of Pakistan, so that's why this is called subject here. And once again we are using complementary verb here, and this is called object, native land, because native land is the actual introduction of Pakistan, so that's why native land is object here. In the very third example, he is my sworn enemy. वो मेरा जानी दुश्मन है। तो अजीज़ान, आप ये देखें कि वो मेरा जानी दुश्मन है, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें हम किसी का तारुफ बयान कर रहे हैं। तो जब हम किसी का तारुफ बयान करेंगे, तो जिसका तारुफ बयान किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। इसी तरह आगे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब यूज हो गया, और आगे सब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर। अब उसका तारुफ क्या है, जानी दुश्मन है, वो मेरा सख्त तरीन दुश्मन है, तो उसका तारुफ है स्वर्न एनिमी। तो यहां इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, स्वर्न एनिमी, क्योंकि ही का जो तारुफ है वो एनिमी है, तो इसलिए यहां जिसका तारुफ बयान किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। और जो तारुफ होता है इन सेंटेंसेस में वो होता है ऑब्जेक्ट, और कंप्लीमेंट्री वर्ब यूज करते हैं। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं ये बात कि यहां ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं है कि ये वर्ब के साथ नहीं आ रहा। तो अजीजान, जब ये वर्ब के साथ नहीं आ रहा तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये कंप्लीमेंट्री वर्ब है। उसकी एक रीजन ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट के साथ आ रहा है। डॉक्टर जो है इस फिक्रे के अंदर फिक्रे को मुकम्मल कर रहा है, तो लिहाजा ये कॉम्प्लीमेंट है। तो जब कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए यहां कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब ही यूज होगा। आगे एक मिसाल है, असलम इज अ डेड शूट। असलम, इस सेंटेंस में जो असलम है इसका तारुफ बयान किया जा रहा है। तो जब इसका तारुफ बयान किया जा रहा है, हमारे सामने ये डेफिनेशन है, द सेंटेंसेस इन विच वी मे यूज इंट्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इन्हीं जुमलों में, इन्हीं सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, विच इज प्रेजेंटेड फॉर इंट्रोडक्शन। तो यहां इंट्रोडक्शन के लिए असलम आ गया। हम किसका तारुफ बयान कर रहे हैं, हम असलम का तारुफ बयान कर रहे हैं, इसलिए यहां असलम सब्जेक्ट होगा। इसी तरह अजीजान, यहां उसका तारुफ क्या है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हियर। तो असलम का तारुफ क्या है, असलम का तारुफ है कि वो पक्का निशानची है, वो पक्का निशानेबाज है, तो इसलिए असलम क्या कहलाया, सब्जेक्ट। वेरी गुड। और यहां इज क्या कहलाया, आप बोले जरा शाबाश बच्चों, जी जी शाबाश, ये क्या कहलाया, कंप्लीमेंट्री वर्ब। वेरी गुड। और ये क्या कहलाया, जी शाबाश, वेल डन, ये कहलाया ऑब्जेक्ट। तो जनाब आपकी खिदमत में इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के बारे में बताया जा रहा है, और इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में ये सेंटेंस और है, लाहौर इज माई नेटिव सिटी। लाहौर इज माई नेटिव सिटी, कि लाहौर मेरा नेटिव सिटी है, आबाई शहर है, यहां मैं पला बढ़ा, यहां मैं पैदा हुआ, तो लाहौर इज माई नेटिव सिटी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां तारुफ किसका करवाया जा रहा है, यहां जनाब तारुफ लाहौर का करवाया जा रहा है। तो इन अकॉर्डिंग विद डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो यहां लाहौर इज प्रेजेंटेड फॉर इंट्रोडक्शन, सो दैट्स व्हाई लाहौर इज सब्जेक्ट हियर। इसी तरह कंप्लीमेंट्री वर्ब, क्यों कि ये वर्ब के साथ नहीं आ रहा। इज अगर वर्ब के साथ आता, ही इज गोइंग, तो इज क्या कहलाता, हेल्पिंग वर्ब। ये आ रहा है कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब ही कहलाएगा, ये इसकी रीजन है। तो आगे नेटिव सिटी, अब लाहौर का, अजीजान यहां लाहौर का एक तारुफ आया, और लाहौर क्या है, नेटिव सिटी, आबाई शहर जिसमें मैं पैदा हुआ, या जो भी आप कह लें जिसमें मैं पला बढ़ा, तो आबाई शहर है। तो लाहौर का असल में तारुफ क्या है, लाहौर का इंट्रोडक्शन क्या है, हमने कहा इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहां लाहौर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, यहां किसी चीज का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, जैसे यहां हमारे पास भाई का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, तो यहां जनाबे मन नेटिव सिटी क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। तो हमारा टॉपिक आज का देखें दोबारा, यहां डेफिनेशन के मुताबिक द सेंटेंसेस इन विच वी मे इंट्रोड्यूस एनीबॉडी, एनीथिंग, एनी प्लेस आर कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। ऐसे फिक्रे जिनमें किसी का तारुफ बयान किया जाए वो क्या कहलाते हैं, तारुफी फिक्रे कहलाते हैं, यानी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहलाते हैं। इन जुमलों में, इन सेंटेंसेस में, इन फिक्रों में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसका तारुफ बयान किया जाए। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसका तारुफ बयान किया जाए। द पर्सन, द थिंग, द प्लेस विच इज प्रेजेंटेड फॉर इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट हियर। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो तारुफ हो, यानी
जो तारुफ हो इन सेंटेंसेस में वो ऑब्जेक्ट होता है और जिसका तारुफ हो वो सब्जेक्ट होता है। तो इसको याद करने के लिए आप ड्रिल कर सकते हैं, जिसका तारुफ हो सब्जेक्ट कहलाता है, जो तारुफ हो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब जमाने के मुताबिक आता है। ये एक आप ड्रिल कर ले, इंशाल्लाह आपको कभी भूलेगी नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको और आपके वालिदैन को और उनसे मुंसलिक तमाम लोगों को सारे हालात में आसानियां अता करे, अपनी बरकतें अता करे और आपको अमन व अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।